is my first ever solo overland. Around 2025, I discovered Kshitij Saxena, a new kid on the block. No greenhorn though, with 60,000 kilometers under his slim belt, most of which was discovering America. South, of course. Well, he surfaced on my feed as I responded to a story he posted on the Jharkhand road workers in Ladakh. Now that's exactly how I'd found Nosh. We got chatty when Yogesh Alikari's KTM got nicked in the UK. Remember that? Well, Kshitij was quick to respond along with others in Holland. But he was eager to tell his story. And so, we rendezvoused at the India Bike Week in Panchgani, where I got to do what we do best at the Biker Radio broadcast. Yeah, listen. Kshitij Saxena, welcome to the Biker Radio broadcast. Welcome to the long way home. Thank you so much. Pleasure to be here. So we're sitting here in Mahabaleshwar, and we're all getting ready for the India Bike Week, Yes. which is a few hours away from now. What are you doing here? I'm going to be on the big trip stage Uh-huh. talking about my journey in South America, Hmm. some Iceland and some Europe travels in there, but primarily South America, which I did in 2024 Right. on my bike. So should we start from Kshitij or should we start from Motorbike Tales? Kshitij. Kshitij. Let's do this. Batao. क्या बताएं? I've heard so much of railway and I've heard of the some square feet railway quarter. Take us there. Oh boy. You went right into it, right? मेरे फादर इंडियन रेलवेज में थे, तो वो एक मैकेनिक थे और फिर वो मास्टर क्राफ्ट्समैन बोलते हैं MCM, वो थे वहाँ पर. तो रेलवेज हैज ऑलवेज बीन अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर अपब्रिंगिंग. हाँ. घर के बाजू में डीजल शेड था, हम वहाँ जाते थे, फ्री के ट्रेन के पासेस मिलते थे. Wow. हाँ. ठीक है, स्लीपर के, Yeah. ठीक है. फिर वो AC में तब्दील हो गए एक टाइम पे आकर के. Yeah. तो और वो जहाँ हम रहते थे वो रेलवे कॉलोनी हुआ करती थी. इट वाज लाइक रेलवे क्वार्टर्स, लाइक ओल्ड ransacked houses. You never know when it can. You always go, when you take a train and you cross all these places and you see these small little matchbox kind of places. And I used to always think, what's life like in one of those? And that's your story. Oh my God, I'm a small towny underdog guy at this moment. Absolutely. We all are. We all are. In some senses, we all are. दिल के कोने तो छोटे छोटे ही होते हैं. क्या बात है? It was slow life. My mother was a teacher. She's Okay. retired now. Okay. What Yeah. was she teaching? English. Okay. Yeah, MA in English. So my upbringing was with Robert Frost, Ruskin Bond, Shakespeare, that kind of things. The road I took the road less traveled, and that basically fucked me up. So those kind of things. Father was not really into academics. He Right. was like a very handy man kind Right. of thing. Like वो हथौड़ा मारने वाले इंसान. मम्मी कहती थी हमेशा, Right. ये साले हथौड़ा ही चलाएंगे जिंदगी भर. All right. And But he was a DIY guy. yes, he was a DIY guy. Yeah, he loved his scooter back then, Bajaj Super, teal green color. दहेज में तो नहीं मिला था उनको, ये तो पक्का पता है मुझे. Thank God. Thank God. तो ऐसा था, जिंदगी वही थी, छोटे स्कूलों वाली छोटे शहरों वाली जिंदगी. आप स्कूल जाओ, मम्मी के साथ ही स्कूल जा रहे हैं, मम्मी के साथ ही लौट करके आ रहे हैं, शाम को दोस्तों के साथ खेलने जा रहे हैं, वही कंचे गुल्ली डंडा, वही जिंदगी. Get the drift. हाँ, सबसे अच्छी जिंदगी थी साहब वो. Right. And then from there? या आफ्टर 12th आई सबने बोला कि भाई इंजीनियर बन जाओ. ठीक है, इंडियन है हम, डॉक्टर इंजीनियर लॉयर. बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है. मैंने माखनलाल यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरने के लिए लेकर के आ गया था, मगर मुझे जर्नलिज्म में बहुत इंटरेस्ट था उस Really? समय. आई वांटेड टू बी अ जर्नलिस्ट. मुझे उस समय वो एरा थी जब बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, ये लोग टीवी पे आते थे और जब ये पैनल और डिबेट व्हेन दे यूज्ड टू होस्ट दैट डिबेट वाज सच एन ऑरा. Right. Like they would own the place. A journalist, like
Who was Mr. Prabhu? Prabhu Chawla. Prabhu Chawla. सीधी बात. सीधी बात. And he would Unleashed. be interviewing Modi, I think, as well. He has interviewed Narendra Modi, I believe. And the politicians and people used to fear them. Like, क्या पूछ लेगा ऐसा ये? विनोद दुआ कोई देख लो तो अगर वो पूरा इंडिया वो जायका लेकर के खा रहे होते तो मुझे खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं पर उनको खाते देख के खाने का मन करने लगता था. So you wanted to. I wanted to be a journalist. Right. But mom was like, no, तुम्हें इंजीनियर बनना है. उन्होंने बंसल क्लासेस का फॉर्म दे दिया, चले गए हम कोटा. Right. अच्छा कोटा. तो हम कोटा चले गए एक बड़ी सी दुकान में. उस दुकान में एडमिशन नहीं हो रहा था क्योंकि हम कहाँ बंसल क्लासेस लायक हमारा एक्यूमेन है. ना बंसल में एडमिशन हुआ ना रेजोनेंस में हुआ. फिर किसी में पैसा देकर के करवा दिया गया. ठीक है, उसका नाम नहीं बताएंगे. ठीक है. है ना. तो वहाँ 1 साल रहे. बड़ी इंटरेस्टिंग लाइफ थी वहाँ से शेप होना शुरू हुआ था मैं. अच्छा. साइबर कैफे कल्चर शुरू हो रहा था इंडिया में. Right. And in Kota, and all the kids would used to go and they would be playing Counter Strike or these kind of games, otherwise porn. Oh, porn. What Counter Strike and all Yeah, this? kids were doing all of these things while I was going to the cyber cafe exploring Ghalib, Sahil Ludhianvi, Majroor Sultanpuri, फैज़ अहमद फैज़, फराज, हम ये सब पढ़ रहे थे. किसी दोस्त ने चस्का लगा दिया था urdupoetry.com का. चाट मारी. Wow. So that's where it's coming from. Maybe. Okay. And I still used to make my own diaries. वो सड़क छाप दो कौड़ी की शायरी. ठीक है. मैं तुझको चुरा लाया हूँ तेरे घर से तेरे बाप के डर से. That kind of thing. The Kader Khan. That happened, and after that I couldn't cross any examination. I couldn't pass anything. After that, mom was very hopeful, and she was like, "No, ठीक है, तू तो मेरा चिराग है. जा बेटा लखनऊ फिर से कोचिंग करने." Okay. हमको लखनऊ चले गए. That was the era when the malls were opening up in India. So Saraganj opened up in my. सुब्रत रॉय के हाथ के दिए हुए वो पर्पल पेड़े खाए हम लोगों ने. That happened in Lucknow, and then finally some college happened. Moved to Ghaziabad, near Dadri, the same Dadri where the lynching case happened. Right. Yeah, was studying over there in electronics and telecommunication. You know why I chose that branch? Because I somehow felt the word telecommunication will relate to journalism in future. And it has. It has now maybe. Now when I look into retrospective. Convergence happened. Yeah. So ये हुआ. फिर उसके बाद नौकरी लग गई. कॉलेज में ही. क्या कर रहे थे? TCS में नौकरी लगी थी. सॉफ्टवेयर इंजीनियर. अच्छा, so you knew enough about that to get yourself. Yeah, that's a debatable question. Right. Okay. Do I know enough? Did I know enough or? What is enough? इंटरव्यू नहीं करेंगे बेसिकली. कहानी खत्म. HR के सामने बहुत अच्छा इंप्रेशन मार दिया था. अच्छा. So that was the first job, and then I came to Mumbai. 2.5 years in Mumbai. In 2013, got a chance to work in Netherlands. Okay. Yeah, I was working for TCS. Their client was ABN AMRO, a Dutch bank. And the guys were like, "You talk a lot. Why would we not like to have you here on-site?" Wow. Came here, 3 months I worked here. I still remember the last day What do you mean here? Netherlands. Right. I live in Netherlands now. By the way, Netherlands से ये आपके शहर के मुझे ये बिल्डिंग ये आपके लिए बना है. ये दाम स्क्वायर के पास ये बिल्डिंग्स हैं. हाँ, right at the central station. So I got a friend of mine. She brought this for me, and I said I'm going to wear this today. Beautiful. अब कॉलोनियल चीजों को पैरों में ही पहनने का वक्त है. So where does this thing come from? Okay, there is this part of you, which is, this stone is always in your hand all the time. Every now and then you feel frisky. गुस्सा हूँ मैं बहुत. Yeah. चिड़चिड़ाया हुआ मैं दुनिया पे. Yeah. अब तो शायद मैं दुखी हूँ. But वो तो जाहिर है. यूरोप ने किया ये सब मेरे साथ. अच्छा. क्योंकि उससे पहले तो हम वही थे ना, जिंदगी बना रहे थे. काम करो, नौकरी करो, जिंदगी बनाओ, जंग जीत लो, इलाका and all of those things. I was building a life, but when I moved to Europe, the horizons expanded. You meet a lot of people who talk about different things. You have no freaking idea what they're talking about. You have two choices: either you be ignorant or go learn about it. I chose the other one. And then I got into the world politics, especially the modern history. Second World War is still my pet peeve. Everything around it, so many documentaries, so many. The best thing about Europe is that you travel 2 hours, you are sitting inside a concentration camp. Sachsenhausen concentration camp near Berlin. So what you go, you walk in there and you just
feel the angst, the Yeah. pain, and all of that. I still remember a very vivid memory of the thing. I walked Why in- do you need to get into it? What is it? I don't know. I just want to know what people go through. Uh-huh. कैसी होती होगी वो कशिश या वो दर्द कि जब वो जाइक्लोन बी ऊपर से डाल रहा है और उस कंसंट्रेशन कैंप के अंदर दो छोटे से कमरे के अंदर 400-500 ज्यूज भरे हुए हैं नंगे और वो सांस दर सांस तड़पते हुए मरते जा रहे हैं और उनके पास एक दूसरे को मारने के अलावा कोई काम नहीं है बचने के लिए। उस दीवार पर साहब नाखूनों के निशान हैं मरते हुए लोगों के। इतना गहरा खोद के मरा होगा वो आदमी। It does something to you if you want to feel it. But where's the need for slapping on that trauma every now and then? You know, you're pulling the band-aid off every 5 minutes. The upbringing was a bit difficult. Let's say it like that. Got it. We won't go there. हाँ वहीं से ही आ रहा है वो सब। Okay. ये तो पता है मुझे वो। So you figured that out also. Think so. गुस्सा तो सारा वहीं से ही आ रहा है ना, क्योंकि लेट गो करना सीखा ही नहीं है ना। सवाल तो मेरा यही है बस, इस जनरेशन से, हमारे बूमर्स से, कि द कार्डिनल सिन दे हैव डन, आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, बट आई थिंक दे कुड हैव डन बेटर. They passed on their trauma and their baggage to us. So that's Kshitij. Basically, yes. मुझे छोड़ना नहीं आता चीज़ों को. Biker Radio broadcast advises safety at all times, discourages underage riding, but celebrates the spirit of motorcycling. And how? This is Tango Charlie, Green Tea 515. Come in. Green Tea. Good morning, Tango Charlie. This is Easy Peter, Green Tea 515. I'm ready to roll. See you in 5 at the DND Bay. Over and out. Midlife, what? Miles. Midlife Miles. That's the name of my talk, yes. Yeah. And that's a documentary also. Yeah, I've put out 27 episodes on my YouTube channel. Yeah. 5 still more to go at the time of recording this, yes. Yeah. Yeah, and I've created some content around it. Yeah. It's my catharsis. You have watched it, it's my catharsis essentially. I did watch quite a lot of it. I won't say I have been able to go through the entire thing, but I like the storytelling. Thank you so much. I like the fact that wherever you are, a damn stone is always in your hand, you know. छेका फेंक के मारेंगे हम बता रहे हैं. हाँ है वो. You know, the one thing when I started following you, your son popped up in the conversation every now and then. Yes. Yeah. And for a long time, at that midlife thing, I was saying, is he not? Is he married? Is it over? Kya ho raha hai? So you have a wife. I am very happily married. I have a very stable family. I love where I am. Lucky. You are lucky. Yes. Absolutely. On that front, I am. Yeah, my original idea of this trip was 2 years from Alaska to Argentina. How did that? Where does midlife miles start? Midlife Mile started long ago, I believe, now that I think about it. Yeah. So actually the original idea was two friends, me and a friend of mine. If you have seen the first episode, we separated the third day on the journey. He is a guy from Suriname. Now Suriname is a country in the north of South America, and a bit of a geography here is that a lot of indented labor from India, from UP East, Bihar. Sugarcane. Sugarcane, cotton plantations. Suriname was a Dutch colony. Yes. वो अंग्रेजों के पास आया, कहीं लोगों दे दो हमको, बंधुआ मजदूरी करानी है. So it was a trade-off. New York was sold to the Brits Yes. for $1. Yeah. And they got Suriname as counter. Yes. What a fucked up deal, to be honest. Seriously. Why?
बट ऐसा तो मेरा फ्रेंड वहाँ से है, हमारे रूट सेम है, तो हम दोनों को मोटरसाइकिलिंग का शौक है, ठीक है। तो हम दोनों ये करना चाहते, तो मेरा ओरिजिनल आइडिया इस स्टोरी का ये था, वी आर टू गाइज बोथ इन मिड लाइफ, आई एम 38, ही इज 44 45, शादी बच्चा जिंदगी घर बार मॉर्गेज सब हो गया है, इससे आगे चलो। And we wanted to create a journey of two guys. One is originally from India, one not, still India within us, and we are going to find our home and reach Suriname. And the climax was, I knew the climax that I knew about Suriname. So I am going to find my India outside of India, because I don't believe in this idea of कि जहाँ तुम्हारा घर है वहीं घर है. So do you get to Suriname? No, I didn't. I was waiting for some chutney music. अरे आप चटनी सुनते हो? अरे यार, I love discovering. नौरंगिया के तले तले आजा गोरिया. अरे मजा ही आता उसको सुनने में. So my wife is from Suriname. Oh, is she? Yeah. तो ऐसा हुआ था, हम नहीं जा पाए, वो पहुंच गया 3 महीने में, मैं नहीं जा पाया. तो ये आइडिया था कि 2 मिडिल एज्ड मैन जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट लाइफ एंड फाइंड होम समवेयर एल्स आउटसाइड होम. पर उसने बैक आउट कर दिया कि लाइक तू साले बहुत शूट करेगा, मेरी बुद्धि खराब हो जाएगी, तू जा अपना घर. हमारे में झगड़ा हो गया. फिर ये आइडिया फिर मुझे ऑन द जर्नी ही आया कि फिर मैं इसे अपने बारे में बनाता हूँ. मैं अपनी कहानी नहीं कहूँगा तो कौन कहेगा, ठीक है. What's the wife called? My wife's name is Aarti. Aarti. ए वो मनिया. अरे वो मनिया. ये तो नहीं सुनती हो. हाँ, मुझे मालूम है, but सुनती हो. you know, in our canvas it has been painted Yeah. with those strokes. Yes. और वो First time India got to hear chutney. Yeah. Yes, you are right. Actually, it's chutney music. Yeah, it you is are right. chutney. Yes. It is an adaptation of chutney. Yes. अरे यार वो गैंग्स ऑफ वासेपुर हर तरीके से कल्ट है यार वो. Yeah, कितनी yes. बार भी देख लो उसको, फट के फ्लावर हो गया. Oh, womania, aha, womania, oh, womania, aha, womania. बदले रुपया के देना चवनिया, बदले रुपया के देना चवनिया, बदले रुपया के देना चवनिया. सैयाची झपट तो हो नाही रनिया. हाँ तो ऐसा था, इसलिए साउथ अमेरिका आया, इसलिए मिड लाइफ माइल्स बनी. I mean, you guys should check it out. It's a joy of not only story. I mean, it is storytelling in all its forms. There's pathos, there's humor, there's sarcasm, and there's great filmography. Is that what you call it? Yeah, you can say that. It is. हाँ. उसमें मैं You spent the whole morning playing with the drone, grabbing shots here, there, completely distracted, but still in it. हाँ. व्लॉगिंग और इसके केस में अगर आप अकेले कर रहे हो ना, कोई अगर कहे ना कि मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ तो ये बकवास बात है. आप एक्टिंग कर रहे हो. द पॉइंट इज दैट हाउ मच यू आर इन द फ्रेम, इन द मोमेंट, एंड हाउ मच यू आर आउट ऑफ इट. ये वाली कहानी है. You know, thanks to the India Bike Week and their team, today they are doing this, they're cooking this khichdi for us. Yeah. And you can have this conversation. Yeah. So big shout out to India Bike Week for this. Yeah. चाय पिए? मंगा लेते हैं, पी लेते हैं भाई. चल चाय पी दे. चाय पिलाओ भाई. है चाय? हाँ. डीओपी चाय पिलाओ. हमारा डीओपी चाय पिला रहा, बताइए. स्पॉट दादा बैठे कैमरे के पीछे. मैंने फिगर आउट तो बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं प्रोसेस कैसे करूँगा. मेरी प्रॉब्लम प्रोसेसिंग है, मेरी प्रॉब्लम फिगरिंग आउट नहीं है. ये तो पता है कहाँ से आ रहा. मेरी कहानी, मेरी प्रॉब्लम ये है. We're all stuck there. We're all stuck there. सिखाया नहीं जाता ना. हाँ. 25 साल पहले बंटवारा हुआ, चाची फलानी चाची चम्मच ले गई, फलानी चाची कटोरा ले गई.
फलानी चाची ने ये कर दिया, तुमने मुझसे ये पहले कहा था, मैं आज 40 साल भी मृत्युशैया पर वो ग्रज लेके लेटा हूँ. One of the things in motorcycling that I have. सर Cheers, buddy. यू टू. थैंक यू भाई. Thank you. One of the things I have, something organically came up while we were doing this podcast. We are at this point, we are at 103. Yeah. I don't know when this is going to come out. But we learned one thing, that the road can teach you anything that you are willing to unlearn. यस. अनलर्निंग बहुत ज़रूरी है, और रोड इज़ अ फैंटास्टिक वे टू सिंथेसाइज दीज इमोशंस. मुझे ये दीवानगी जो है ना दुनिया की, थोड़ी ये समझ में आने लगी. Hmm. ये वैलिडेशन आपको कैसे क्रिपल करता है टू द इन द एंटायरिटी ऑफ योर लाइफ, ये समझ में आने लगा मुझे. How? भाग ही तो रहे हैं. आधे से ज़्यादा जनता जो 90% मोटो व्लॉगर्स हैं, देख लो ना. Hmm. मैं मोटो व्लॉगिंग के सीन की बात करता हूँ, नीच डाउन Fair करते enough. हैं. ठीक है. ठीक है, यही तो कर रहे हैं. वो कहने के लिए क्या है, क्या है? हे गाइस आज हम यहाँ हैं, देखो हमारा कमरा ये है, जीतू भाई ने हमको 1200 रुपये में दे दिया So है. it's a मैं. हैं? It's a मैं. नहीं, इट्स नॉट. यस एंड नो. मैं एक सेट कॉन्टेक्स्ट में, आई विल पुट इट इनटू कॉन्टेक्स्ट हियर. यही है. फिर हम बाइक पे हमने लाद दिया, अब हम चले गए, फिर हमने अगड़म मगड़म बाइक पे बोल दिया, यार दो चार ड्रोन शॉट उड़ रहा है. ड्रोन 40 सेकंड तक. ठीक है, 40 सेकंड का शॉट है साहब. 40 सेकंड का ड्रोन शॉट. 40 सेकंड में बॉलीवुड मूवी का रवि बड़ा होकर के बाप के कत्ल का बदला ले लेता है. ठीक है, शाम हो गई, खत्म हो गया व्लॉग. मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो गलत है, बस मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनके पास और कुछ कहने के लिए नहीं है. But it's a learning curve also for them. It's not steep enough, but I'm sorry, I'm not gonna romanticize it. yeah. ठीक है, बहुत लोग सीखना भी नहीं चाहते. हाँ ठीक है. अगर तुम 6-8 साल पहले वही कंटेंट बना रहे हो और 8 साल बाद भी तुम्हारे पास वही है कहने के लिए, फास्टेस्ट राइड फ्रॉम दिल्ली टू बैंगलोर तुम्हारी 7-8 साल पहले भी हुई, तो 7-8-10 साल बाद भी हो रही है, तो आई एम सॉरी. ठीक है, खच्चरपना तुम ही कर रहे हो. Yeah. ठीक है, तो ये है. और मेरे अंदर इस बात को लेकर के है बहुत गुस्सा. ये जो रंजिश है, हाँ. I hear it, Yeah. and the word influencer itself is bastardized. It is. And how? And how? हाँ. Yeah, but away from that, you really, I mean, some people just get your goat, don't they? Every time some incident happens, kuch na kuch, it just gets your goat. You get angry with it, and it just pours out. पता नहीं, शायद ऐसा है कि मैं ये चाहता हूँ कि समाज जो है वो मेरी तरह सोचे. हो सकता है नार्सिसिस्टिक आइडिया है ये, हो सकता है. और हर आर्टिस्ट के अंदर थोड़ा सा नार्सिसिस्ट तो होता है. At least you accepted you're an artist. हाँ, ये तो मैंने आज से क्या, मुझे 7 साल पहले से पता है. Wow. The other thing I learned, where my boss used to say this in FM radio, he used to say that what fuels an artist is his or her insecurity. Yes, I will not differ with it. Yeah. बहुत टची फील ही होते हैं भाई. हम तो बहुत टची फील ही. Yeah. पटाख सुतली हैं, बस तुम पलीते में लगाओ और देखो फटते बम उसके बाद. ये तो मुझे पता है. बट इन द मैंने फोटोग्राफी शुरू करी थी 2014 में. 17 तक 18 आते आते मुझे लग गया था, खुद ही को लग गया था कि काम तो अच्छा कर रहा हूँ मैं. Yes, you. I don't need to tell you that. मुझे ये पता है, मैं सेल्फ अवेयर हूँ, ऑब्नॉक्शियस नहीं हूँ. ठीक है. Really? आई डोंट थिंक सो. सेल्फ इंडल्जेंट हूँ, आई एग्री विद दैट. ठीक है, ज़्यादा बोस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं गाने नहीं गाता मैं अपनी चीज़ों के. But before the interview, you were holding your tune. Like how? कौन सी ट्यून? अभी ये देख के दिल झूमा. गाना तो हम गा ही लेते हैं यार. क्या मम्मी बात ने इतने पुराने गाने सिखाए हैं. गाए के लिए आते थे ना, मेहमान बेटा 2 मेहमान आए, गाना गा के दिखाओ. तो वो सब तो किया ही है. दीवाना हुआ बादल. The Biker Radio Broadcast. Listen, connect, ride on. So where are you in Holland? Where I live in Holland. Yeah.
close to Rotterdam. It's a small village close to Rotterdam. Really? What's life like? Very slow. Yeah? शाम को 6 बजे के बाद गैया की आवाज़ आती है, बस हवा चलती है, bloody miserable weather, but it's Yeah. okay. I deal with it. Yeah. शांत है. शाम को बस मुझे अगर जिस दिन कंटेंट एडिट नहीं करना है, शाम को रियाद को सुला करके, रियाद मेरा बेटा, अच्छा. ठीक है, उसको सुला करके सब कर करा करके बस बाहर जा करके पैटियो पे बैठ करके बस हवा की आवाज़ सुनना अच्छा लगता है. And what's your profession? हाँ, I'm a business consultant, business analyst by profession in a corporate firm at this moment which builds oil rigs. Really? Yes, नाम नहीं लूँगा मैं. Right. Which builds oil rigs offshore. कहीं शिप पे डूब जाता है अगर समुद्र में तो वो निकालते हैं उसको. अच्छा. क्रेन्स जो आप देखते हो बड़ी बड़ी, ये जो बड़ी बड़ी ऑयल एंड पेट्रोलियम कंपनीज के रिग्स बने होते हैं वो बनाती है. उसमें मैं एज अ बिजनेस एनालिस्ट हूँ एट दिस मोमेंट. अभी शुरू किया जॉब 3 महीने पहले. अच्छा. दोस्त जब साउथ अमेरिका से लौटा था उसके बाद तो शुरू ही नहीं करी थी जॉब. मन ही नहीं कर रहा था करने I का. always thought you were in the IT space. I am in IT space. Okay. In IT space, I'm a business analyst. Okay. So that's your day job. That's my day job at this moment. For how long, I have no idea. Right. Probably 3 more months. पैसा कमा लिया, चलो घूमे. क्या बात है. और नहीं तो क्या. मैंने घर वालों को बोल दिया था. मम्मी कह रही थी एक बार, कहाँ तुम साले नौकरी छोड़ के भाग जाते हो बार बार. मैंने कहा 37 जी ले तुम्हारे हिसाब से, 37 अगले मैं अपने हिसाब से जीऊँगा. सब कर लिया मैंने. पढ़ाई कर लो, अच्छा 10th कर लो, अच्छा नंबर आ जाएंगे, फिर अच्छा कॉलेज मिलेगा, फिर अच्छा साइंस. नॉट दैट शी डिड हर बेस्ट. उन्होंने कुछ गलत नहीं किया. बस मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे साथ ये हुआ है उसका इम्पैक्ट. Okay. Where does the motorcycling start? Motorcycling starts, proper motorcycling starts in 2020. जब मैं नेदरलैंड से मूव किया था Wait, तो you were riding a bike here हाँ in पर वो Kota? नहीं, कोटा में नहीं थी मेरे पास. इतना पैसा थोड़ी था घर वालों के पास. Right. No, borrow one, I guess. नहीं यार, 300 जरूरत नहीं थी. 300 रुपये पॉकेट मनी पे क्या क्या कर लोगे. Right. तो So 2023. 2020 में जब मैं नेदरलैंड्स पहुंचा, उससे पहले इंडिया में बाइक थी अपने पास, बजाज एक्सीड 125. You had. आई हैड मुंबई में गाजियाबाद चलाया उसको, मुंबई लेकर के आया उसको. Okay. मुंबई चलाया, 47,000 की बाइक 1,000 रुपये में बेची. Right. जब उसको वापस नेदरलैंड निकलना था, जब नेदरलैंड्स पहुंच गए, देन आई डिडंट राइड फॉर 8 years. भाई सब होल्ड डाल समेट के, बोरिया बिस्तर समेट के दूसरे कंट्री जा रहे हो, ब्रेक इवन करना. मोटरसाइकिलिंग इज अ लग्जरी ओवर देयर. Right. कार इज अ नेसेसिटी. Right. राइट. देन 2020 में कोविड आया, घर पे बैठे हुए थे, बाजू में एक राइडिंग स्कूल था. अच्छा. हाँ, मोटर राइडिंग स्कूल, दोस्त बन गया वो अपना. देन आई वाज लाइक क्लासेस दो भाई जरा एक आध. तो मी एंड माय वाइफ ट्राइड मोटर. आई बैक ऑन द बाइक, शी ट्राइड मोटरसाइकिलिंग, शी डिडंट लाइक इट. Right. And then he was like, तुमको तो लाइसेंस जरूरत नहीं है, तुम बस खरीदो हो जाओ. Then I bought a GT 650 over there Okay. in Netherlands. Why I'm an Indian? Royal Enfield homage. Within 1.5 years, sold that shit. Because that thing more than giving me validation and chicks gave back pain. कैफे रेसर थी वो, लॉन्ग डिस्टेंस कहाँ चलोगे उससे. फिर ADB बग आ गया लाइफ में. And when the ADB bug caught me, then I was like, अरे ये तो कर सकते हैं. तब फिर a lot of different bikes I tried, because European market में you can try a lot of bikes. So from the likes of Norden 901, Huskies, KTM 790, 890, so on and so forth, Africa Twins, BMW GSs, like a short small dirt bike, CRFs, KTM XX, ये सब try करी मैंने. Then I settled on Yamaha Tenere 700. That's your right. That's my bike at this moment, on which I have done, I think इतना जितनी भी journeys करी हैं उन सब में लगभग 60,000 kilometers I have done on it. Like, numbers don't mean anything. No, yeah. but geography does. Tell me, where all? So I shipped my bike from here to Valparaiso, Chile. Took a month. And then from Valparaiso, Chile, I went down to Ushuaia, southernmost city in the world. Not technically, Puerto Williams it is essentially. From there, I came back up via the eastern side of Argentina, which is like pampas and stepas, it's like open vast fields. You have nothing. For me ना, I don't know, मेरी कुछ घुंडी हिली हुई है. Mountains ठीक है, अच्छे लग रहे हैं, पर अगर मुझे उजाड़ बीवान दश्त और सहरा दिख रहा है ना, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है for some reason. मतलब आदमी ना आदमी की जात, तुम्हारे आसपास सिर्फ गुआनाकोज और लामास घूम रहे हैं. लामास तो कहवा नहीं है, गुआनाकोज है.
मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। एक सड़क है जो जा रही है और तुम बस जा रहे हो, बड़ा फिलोसॉफिकल साउंड करता है, रोमांटिसाइज। तो ये क्या एकांत से एक कुछ पेबैक मिल रहा है? हो सकता है, बाहर का नॉइज कट ऑफ हो गया है ना। My Hindi is getting pretty good. देखिए speaking to साहब, you. ladies and gentlemen, presenting झारखंडू बैनर्जी। झारखंडू बैनर्जी। झारखंडू बैनर्जी, झंडू बैनर्जी तो मैं नहीं बोल सकता आपको, ठीक है, दोस्त को बोल सकता हूँ, उसका नाम भी झारखंडू है। So I'm from Jamshedpur. हाँ So it used to be Bihar, हाँ right? So when I came to Delhi, तो बिहारियों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैरीज कहते थे. अच्छा। So I was a Harry. ओह, अब डीयू पास आउट। Then हमारा स्टेट का बंटवारा हो गया और वो झारखंड बन गया. हम बन गए झाड़ी. हम बन के झाड़ी। बढ़िया है। From Harry to झाड़ी. मैरी टू झाड़ी, अर्श से फर्श पर आते देर नहीं लगी। What do you think about the Biker Radio broadcast? Amazing thing. You are doing something really good. मैं सुनता हूँ, उसको इतना टाइम नहीं मिल पाता है, पर मैंने डेफिनेटली कान में लगा रहता है अगर वो कहीं चल रहा हूँ। मैंने तो कुछ तो पॉडकास्ट देखी हैं, बिग बियर बैंगलोर वाली देखी थी, गुलपनाग तो मैंने पूरा सुना था, उनके 2 एपिसोड थे शायद। हाँ, गुलपनाग जी के 2 एपिसोड थे, वो सुना था, ठीक है। एक कोई राजा साहब थे जयपुर में, आपने उनकी हवेली में कहीं शूट किया हाँ, था। और 100th episode. ये 100th एपिसोड वो देखा था, इतना तो ही थोड़ा देखा है। कुछ करना था. हाँ So we thought, why not? I mean, you hardly get a Maharaja who's a biker. हाँ अच्छा वैसे ही कम लोग हैं. हाँ ऊपर से Lakshya Raj Singh Mewar. He's now the Maharaja. okay. Just lost his dad. I'm sorry. Yeah. तो वो सब देखा यार, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं really। मेरे तो प्रिविलेज्ड है हूँ मैं कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, इतना तो कोई ढंग का काम भी नहीं है मेरा अभी। मेरा काम बहुत आसान था क्योंकि it was in audio. But now, after our audience wants us to do it in video. What do you think? Does it make sense to have 2 people talking on camera? हाँ हाँ absolutely it does। It does. क्यों भाई, जब प्रभु चावला इंटरव्यू कर सकते हैं तो हमने क्यों नहीं कर सकते हैं यहाँ पे बैठ करके? क्यों नहीं कर सकते हैं? वो तो अच्छा, सुनने वाले सुनते हैं भाई, मैं तो बहुत सुनता हूँ ऐसे विजुअल पॉडकास्ट। सुनने वाले सुनते हैं, देखने वाली ये जो एडिड आयाम है, पर ये तो आज के डिजिटाइज्ड वर्ल्ड की देन है ना। तो लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पर चला करके बर्तन धो रहे हैं, खाना बना रहे हैं, टीवी पे चल रहा है, सुन रहे हैं। तो यही वाली कहानी है बस, ठीक है। जिस मीडियम अलग है, एफएम नहीं है सुनते अब लोग इतना, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम पर रीलें काट के डालेंगे आप इसकी, ठीक है। तो यही है, पर मुझे लगता है अगर बात में वजन हो और पसंद हो लोगों को तो सुनते हैं लोग, तो ऐसा है। How do you feel about the community? कुछ कर रहे हो? मोटरसाइकिल What is your contribution to the community? मैं उस 16 साल के बच्चे तक वो बात पहुंचाना चाहता हूँ कि ये जो 90% मोटो व्लॉगर्स है ना, ये तुम्हारा महत्वपूर्ण कीमती टाइम लेकर के तुम्हें ही कूड़ा परोस रहे हैं, तुम्हारे ही नाम पे व्यूज लेकर वो तुम्हें ही कुंद बना रहे हैं। तुम मानो चाहे ना मानो इस बात को, मैं तो बोल रहा हूँ। और मेरा बड़ा रीज़न ये है कि मैं अपने बच्चे के लिए एक बेटर कम्युनिटी मेरे फॉर्म में छोड़ के जाना चाहता हूँ, ताकि जब वो बड़ा होकर के मेरी आँख में हाथ डाल करके बोले ना पापा आपने क्या किया, बच्चा मैं इतना ही कर पाया, मैंने इतनी कोशिश करी। मेरे पास एक जवाब होना चाहिए। सोचते रहते हो? हाँ, साउथ अमेरिका में ही था मैं, ब्राज़ील में बैठा हुआ था मैं, हायासिंथ मैकॉस देख रहा था, लार्जेस्ट पैरट इन द वर्ल्ड। ओके। सामने बैठे हुए थे मेरे, ऐसा पूरा झुंड आया था, अखरोट खा रहा था बैठ करके। हाँ। ठीक है, बाजू में पाम ट्रीज थे, इधर फिर कुछ और भी चिड़िया आ गई, मैं नाम भूल रहा हूँ उनके, वहाँ पे तो सब उसने बताया था रेंजर ने। हाँ। ठीक है, उसको हायासिंथ मैकॉ को देखते देखते कैमरा लगाया और बस बोल दिया कि खा तो रहे हो इतना मीट, ठीक है, 74% जाती है मीथेन इससे एनवायरनमेंट में। ठीक है, आज तुम जो व्लॉग देख रहे हो, जो कुछ बचेगा नहीं, मैं अपने बच्चों को क्या दिखाऊंगा, ये फुटेज दिखाऊंगा उसे मैं। बोल दिया कैमरे पे, तो मुझे चिंता तो होती है उसकी। पर फिर वो भी थॉट है ना, क्यों ही किया बच्चा पैदा जब पता है साइंटिफिक थॉट्स। खैर वो अलग ट्रैजेक्टरी है, अलग टैंजेंट है। So your contribution to the community is an eye opener. मैं बच्चों के लिए बहुत फील करता हूँ। Right. मैं ये नहीं कहूँगा हमें गाइड करने वाला कोई नहीं था, ये भी बड़ा रोमांटिसाइज थॉट है। है ना, हम जब बड़े हो रहे थे तो हमारे पास कुछ नहीं था। हाँ ठीक है, कम था, ठीक है, तो ये बड़ा रोमांटिसाइज थॉट है। लेकिन बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं जितना मेरी समझ है, दूध का दूध पानी का पानी करके समझा दूँ। ठीक है, कि जब 16 Thank you for doing that.
वेलकम, आई एम जस्ट डूइंग माय ट्राइंग माय बेस्ट। एक 16 साल के बच्चा जब मुझे डीएम करता है ना साहब कि मैंने अपने पापा को बोला है कि ज़मीन बेच करके मुझे S1000 RR दिला दें और मोटर ब्लॉगिंग का एक किट दिला दे ताकि मैं बेस्ट व्लॉगर मोटर ब्लॉगर बन पाऊँ, आप बता दीजिए इतने में मेरे लिए फास्टेस्ट बाइक कौन सी आ जाएगी और मैं कैसे करूँ? 16 साल का बच्चा, Right. तेरा एज गलेबल एज दे कम नाउ। Yeah. हाँ, यही आप जो काउंटर लॉजिक दे रहे होंगे शायद यही दे रहे हैं ना कि इन्फॉर्मेशन बहुत है दुनिया में, उन्हें पता होना चाहिए दुनिया में, दे कैन सिफ्ट थ्रू ऑल ऑफ दीस थिंग्स। No, Is that what your I'm, logic? no. What I'm trying to say, it's again, you live, you learn. नहीं, He learned. हाँ, वी लिव वी लर्न, आई गेट इट। फिर तो वही लॉजिक हो गया ना कि फिर समाज में टॉर्च बीयरर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? But, okay, until you crash your bike, you don't learn. अग्रीड, बट तो उसको करने दो ना क्रैश। पर वो भाई, हाँ, वो 16 जमीन का बेच बच्चा के। है, वो जमीन बिकवा रहा है अपने बाप की। I hear you. ये वही किसान है जो बाद में फांसी लगाएगा बाद में जाकर के। वो ठीक है, वो बट उपाय क्या है? मुझे नहीं पता, बस मैं तो बोल सकता हूँ ना। हाँ, मेरा उपाय जितनी हाँ, कैपेसिटी बिल्कुल, में मेरी I'm- दुनिया में मैं कर रहा हूँ। I'm not undermining that. I'm just उपाय यही है कि ये जो बड़े बड़े मोटो व्लॉगर्स हैं जिन्होंने मोटरसाइकिलिंग को लाइफस्टाइल और ब्लिंग ब्लिंग बना दिया है उठा करके, कि यही एक तरीका है। देखो ना कितने वीडियोस आते हैं फास्टेस्ट, उनके साला हर दूसरा वीडियो फास्टेस्ट फ्रॉम दिल्ली टू बैंगलोर है। But इतना it क्या उड़ के जा रहा हो बे? but it's also doing well, no? हाँ, क्योंकि वो शॉक वैल्यू कंटेंट है ना। So is Salman Khan, right? हाँ, आई एग्री विद दैट। पर बात ये है ना कि सलमान, एक 16 साल का बच्चा सलमान खान से रिलेट नहीं करेगा जितना वो मोटो ब्लॉगर से रिलेट कर लेगा, Right. क्योंकि उंगली उठाना या किसी और को बहुत आसान, क्यों इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग होती है? Sorry, maybe not Salman, but maybe a Ranveer or. आई गेट द पॉइंट, Yeah. ठीक है भाईजान की बात नहीं करेंगे, ठीक है, आई गेट द पॉइंट। मगर मैं आपके लिए भी तो रणवीर सिंह इतना अप्रोचेबल नहीं है, मैं अप्रोचेबल हूँ। हाँ, वही true. लॉजिक उस बच्चे के लिए भी है, उसे पता है वो मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम करेगा, 5 बार मुझे स्पैम करेगा, 10 बार स्पैम करेगा, किसी न किसी फॉर्म में मुझसे रिस्पॉन्स तो ले ही लेगा ना वो। तो मैं ज्यादा रीचेबल हूँ ना, वो मुझसे रिलेट करता है ना, क्योंकि मैं भी तो एक मिडिल क्लास बच्चा गुल्ली डंडा कंचे खेल के वहां तक पहुंचा, वो भी वही कर रहा है आज, उसे लग रहा है कि 20 साल में वो वहां पहुंच जाएगा। रिलेटेबिलिटी फैक्टर है भाई। तो ये है, तो मुझे इन मोटो ब्लॉगर्स से बहुत बहुत चिढ़ है मुझे। लद्दाख मत जाना, बाइक बहते बहते बची, मरते मरते बचे, बस जिस रोड पे मैं था वहां एक तरफ पहाड़ था एक तरफ खाई थी, जू चौपाटी होगी वहां पे अगर खाई नहीं होगी पहाड़ पे तो। इतनी चिंता है, अगर तो मत जाओ नहाने के लिए, पैर फिसल गया, खोपड़ी खुल गई, मर गए। सर फियर मॉन्गरिंग है, बुलशिट है। So, yeah, yes, absolutely. वो नहीं चलेगा तो झंडा चिपका लो छाती के ऊपर। Right. हर शॉट में, ड्रोन शॉट में झंडा लेकर के खड़े हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि झंडा नहीं होना चाहिए, हमारी बिलोंगिंग, हमारी आइडेंटिटी है भाई वो। पर क्या छाती पीटते हो जाकर के हर किसी के सामने जाकर कि ये देखो मैं यहाँ से आया हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी है। Identity, that's a powerful phrase. ये- Some we put on या and और we ये forget who we are. ये बहुत कम लोग हैं जो इस बात को समझते हैं, पर एक बहुत बड़ा तबका है और एक बहुत बड़ी जमात है। ये बेचना है ना, ये दिस इज सेलिंग, Yeah, एंड डेयर आई से नेशनलिज्म सेल्स प्लैनेट वाइड। yeah, कंफ्यूज मत करिएगा इसको पेट्रियोटिज्म से। yeah. That's the other part. We won't get into it, but you are होता patriotism forever ready to pull out that. हाँ, होता पेट्रियोटिज्म अगर तो बोलते ना तुम सोनम वांगचुक के बारे में, बोलते फर्नांडा को जब 7 लड़कों ने रेप किया था, फॉरेन ट्रैवलर थी ब्राजील की, Yes. ठीक है, बोलते तुम कुत्तों के बारे में, बोलते क्लाइमेट चेंज के बारे में, Yeah. पर तुम नहीं बोलोगे। We dedicated one episode to her. फर्नांडा, And there's no, it's the sound of silence. We just played that song. yeah. The whole episode. सामन गाफ को, No, हाँ, listen to it. It's something. ओके, मैं सुनूंगा वो। It's just a 3-minute thing. ओके। और बहुत सारे मोटो ब्लॉगर्स, आई एम सॉरी टू से दिस, बहुत सारे मोटो ब्लॉगर्स इनको कुछ, इनके पास कुछ है ही नहीं कहने के लिए। ये तो तुम बार बार कह रहे हो। कहाँ क्या कह लोगे तुम, क्या भाई, अगर एक बात क्या है, इतना ज्यादा खुद को पेडेस्टल पर चढ़ाने की आदत है ना, वो कल्चर से ही आती है, ठीक है, कि सपने में ये नहीं मिलता, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, और पूरी आधे घंटे की राइड में बस एक ही बात बोली जा रही है। अरे यार, मुझे कुछ और पर्सपेक्टिव दो ना यार। वो रट के वही बोल रहे जो उनके माँ बाप ने बोला होगा। हाँ, 10 रुपए लोटा चटाई लेके निकले थे। वो इट्स बेसिकली दैट व्हील गोइंग
हाँ, फॉरवर्ड, राइट? वो फ्रीडम नहीं है उनके पास इंडिपेंडेंटली एक्सपीरियंस करने की लाइफ की, बिकॉज दे हैव गॉट दैट इनेट फियर विद इन देमसेल्व्स ऑफ फेलियर, राइट? हाँ, आसान रास्ता चूज करना है ना। मैं ये नहीं कह रहा, देखो मैं कोई बहुत बड़ा महात्मा गांधी नहीं हूँ कि मैंने भी आसान रास्ता चूज किया, मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिली, मैं जाके हीरोज में कमा रहा हूँ। So you like the Pagdandi. ओके, You have chosen the adventure bikes, हाँ, right? So you're not a highway guy. नो, नॉट मच। Why solo? क्योंकि जिन जगहों पर जाने की रीलें हम सेव करते हैं ना, वहाँ सड़कें नहीं जाती। क्या बात है, क्या बात है। बस। Kshitij Saxena, thank you so much for being on the Biker Radio broadcast. Thank you so much. It was It's a pleasure. It was my honor. नहीं, चांडी, मुझे नहीं लगा था इतनी जल्दी मुझे कोई पॉडकास्ट के लिए बुला लेगा, मुझे नहीं लगा था। और जो आपका जो वो कनेक्शन है ना मैट टीवी के साथ नौश के साथ, मैं नगेट का छोटा भाई हूँ। आप कह सकते हैं, हमारे बंगाली नगेट है आप। बिल्कुल। बंगाली नगेट ही अच्छा है, देखो इट इज अ नाइस रिंग टू इट। Nice, lovely. झाड़ी से तो अच्छा ही है। Biker Radio Podcast advises safety at all times, discourages underage riding, but celebrates the spirit of motorcycling. And how? This is Tango Charlie, Green Tea 515, come in, King Green Tea. Good morning, Tango Charlie, this is Easy Peter, Green Tea 515, I'm ready to roll. See you in 5 at the DND Bay, over and out.